how to is it easy to get visa Turkey, especially patient? Actually, for the patients who are planning to come to Turkey, it's easy to get visa. कौन सी ऐसी इमराज का इलाज मुआवजा किया जाता है ताकि लोग यहाँ पर पहुँचे? दुनिया में कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसका हम इलाज ना करते हों. फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स वी आर डूइंग हियर इन मेमोरियल हॉस्पिटल. मरीज जो पाकिस्तान में मौजूद है वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते पेशेंट डायरेक्ट हमें अप्रोच करता है वेबसाइट से. उसके बाद ये पेशेंट रेफरेंस से आता है. जो जिन पेशेंट्स की हमने ट्रीटमेंट की होती है वो आगे उसको रेफर करता है. नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा. नाज़रीन, नई बात डिजिटल मीडिया के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है और इस वक्त मैं तुर्की में मौजूद हूँ. तुर्की के मुख्तलिफ अस्पतालों का मैंने दौरा किया. ख़ासतौर पर तुर्की मेमोरियल हेल्थ केयर ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है जिसके तकरीबन 11 के करीब अस्पताल हैं और इस्तंबुल में और दीगर जो है सिटी तुर्की के वहाँ पर जो है ये अस्पताल मौजूद है. तुर्की ही ऐसा एक दोस्त मुल्क है जहाँ पर हम जाकर अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं. तुर्की मेमोरियल हेल्थ केयर ग्रुप जिनके 11 के करीब अस्पताल हैं और तकरीबन 3 से 4 अस्पताल इस्तंबुल में हैं और इन अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मौजूद है. और अगर इनके सर्जन्स की बात करें, कॉमन यल्चन प्लाट, उन्होंने तकरीबन उनका 90.4 लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर जो है उनका जो है वो ये शरह है, कामयाबी की शरह है. और इसी तरह दूसरे अमराज की बात करें तो जो थैलीसीमिया के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पर की जाती है. वो भी मरूफ यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं. इस ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हाजिम चारकली. उनसे पूछ लेते हैं कि किस किस्म की सहूलियात है पाकिस्तानी मरीज़ों के लिए, किस तरह वीज़ा हासिल करना ईजी है. बहुत सारे सवालात उनसे हम पूछते हैं. ख़ासतौर पर नई बात डिजिटल मीडिया के ज़रिए से हम अपने नाज़रीन को बताएँगे. सर, थैंक्स सो मच फॉर गिविंग अ टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन, how to is it easy to get visa Turkey, especially patient? Actually, for the patients who are planning to come to Turkey, it's easy to get visa. First of all, we need to evaluate the case of the patient. After that, everything is okay. If the patient wants to come, we are giving a visa invitation letter, and with this invitation letter, they can easily get their visa from our embassies. In case of any lack of time or missing issues, we can deal with our embassy and consulate and accelerate the issues. Sir, actually due to corona some problem in embassy to get visa. Patient want to come early but unfortunately corona and very busy. So some problem have patient. Do you have any step to take? Unfortunately, during the pandemic period, we had some problems. Borders were closed, so that's why we couldn't touch this. But hopefully, inshallah, nowadays we will not have that problem and the patients will come easily. So there are regular flights of Turkish Airlines. They are coming and going back. For the moment, there is no problem. If there is flight, we can receive the patients without any problem. What is the first step of the patient to come there? Okay, before the process starts before the arrival of the patients. In order to give the most appropriate information to the patient or to the family, we first need to get all the medical records of the patient and and share these informations together with our doctors. And after that, we are giving a medical second opinion and cost estimation to the patient or the family of the patient. Many patients ask the question that if the memorial have the facility online in Pakistan, patient can do through online. Yes, we are using telemedicine formalities. So we did lot of teleconsultation together with our physicians, translator, and the patient. So it's possible. We are regularly doing this. And for the patients who are planning to come to Turkey, if they will get a surgery, sometimes we may also offer this service as free of charge. And what about MOU signing with Pakistan government as well as private sector? We will be more than happy to sign a memorandum together with Pakistan official authorities, Ministry of Health and so on, in order to receive patients from Pakistan. In most of the countries we are dealing with Ministry of Health. They are sending us their patients and they are happy working with us. We are providing affordable prices to the ministries and we are organizing a continuity of treatment. We are still communicating with our patients when they discharge. So if
If Ministry of Health wants to sign with us, we will be more than happy signing with it. What are the specialization of your hospital? Okay, Especially we have, first of all, we have some values. Okay, Values. Quality is one of the most important thing in our values. But on the other hand, we wanted to differentiate from other hospitals all over the world with our expertise on the complicated cases such as liver transplant, bone marrow transplant, oncological treatments, cardiac care, cardiovascular surgeries for both pediatric and adult cases. So we have our experience, we underlined our expertise on the complicated cases. Thanks so much. Last question is that any planning to come Pakistan to meet with the government officials and private sectors? Yes, we are planning to come as soon as we organize. Probably at the first quarter of the next year, we will be coming to Pakistan, inshallah. थैंक्स सो मच। अजी नाज़रीन, बिल्कुल आपने जिस तरह ग्रुप डायरेक्टर हाजिम चारकले की बात सुनी, उन्होंने तफसीलन बताया कि किस तरह यहाँ पर मरीज़ आते हैं और किस तरह उनकी पॉलिसी और किस तरह जो है वो मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जाता है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उन्होंने फ्यूचर में प्लानिंग की हुई है कि वो वहाँ पर जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी जो है वो मुलाकात करेंगे और मज़ीद जो है वो मेडिकल टूरिज़म के ऊपर पेशरफ्त पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होगी। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो पाकिस्तान रीजन के जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद है, हेड बल्कि हेड कहा जा सकता है, मजहर बशीर साहब जो हेड हैं इस रीजन के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली पेशेंट इनके साथ रब्ता करते हैं। मजहर साहब, पहले बताइएगा कि आपके इस स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रुप जो एक ग्रुप है और उसमें तकरीबन काफ़ी सारे 11 के करीब अस्पताल हैं, कौन सी ऐसी अमराज का इलाज मुआवजा किया जाता है ताकि लोग यहाँ पर पहुँचें और कैसे पहुँचें? देखें, जो जहाँ तक आप इलाज मुआवजे की बात कर रहे हैं उसमें दुनिया में कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसका हम इलाज ना करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि हमने 5000 प्लस लिवर ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है हमारे पास। जैसे मोर देन 6000 7000 प्लस हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हम ईयरली जो है वो 200 प्लस 300 प्लस हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं सक्सेसफुल। तो हमारी जो ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स वी आर डूइंग हियर इन मेमोरियल हॉस्पिटल, नॉट ओनली लिवर और किडनी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि एक पेशेंट कैसे आपसे रब्ता करें? फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि जिगर की पैवंदकारी चाहते हैं, गुर्दों की पैवंदकारी चाहते हैं, उसके साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि चूँकि उनके वो काबिल इस्तात हैं लेकिन इंडिया उनको वीज़ा इशू नहीं कर रहा। इससे पहले बड़े मरीज़, बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ऐसे मरीज़ थे जो काबिल इस्तात थे और वो इंडिया में जाते थे, लेकिन इंडिया ने जो पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात आपके सामने हैं, वीज़ा इशू है, वीज़ा इशू नहीं किया जाता। मेडिकल टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से लोग इलाज मुआवजा कराते हैं। तो तुर्की एक दोस्त मुल्क है, एक मरीज़ जो पाकिस्तान में मौजूद है वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकता है और यहाँ पर इलाज मुआवजा करा सकता है? देखें, हमारी जो मेमोरियल की जो अभी जो लोकल वेबसाइट है वो भी उर्दू में है। अभी हमने न्यूली उसको डिज़ाइन किया हुआ। उसके साथ कुछ पोर्टल्स हैं। एक तो ये है कि पेशेंट डायरेक्ट हमें अप्रोच करता है वेबसाइट से। उसके बाद ये पेशेंट रेफरेंस से आता है, जो जिन पेशेंट्स के हमने ट्रीटमेंट की होती है वो आगे उसको रेफ़र करता है कि मेमोरियल से मेरी पहले ट्रीटमेंट हुई है और आप भी वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद इंटरनेशनल जो टूरिज़म एजेंसीज़ होती हैं ये भी पेशेंट फॉरवर्ड करती हैं। जो बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट की जो असेसमेंट है, परफेक्ट असेसमेंट, उसके लिए हमारा एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जो कि पेशेंट और प्रोफेसर के दरमियान, जो कंसर्न प्रोफेसर हैं उनके दरमियान एक ब्रिज डेवलप करता है ताकि पेशेंट की जो प्राइमरी असेसमेंट है डिज़ीज़ की वो 100% करेक्ट हो सके। उसके बाद वीज़ा और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उनमें ऑफ कोर्स हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट उसकी हेल्प करता है, जिसमें पेशेंट को कोई ऐसी हर्डल या कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती वीज़ा लेने में और यहाँ ट्रीटमेंट। और सबसे पहले ऑनलाइन आप पेशेंट की रिपोर्ट्स चेक करते हैं? जी, कंसल्ट करते हैं मुआलजे, उसके साथ फिर बुलाते हैं? उसके बाद जो प्राइमरी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान से पेशेंट करवाता है, वो हमारे प्रोफेसर को शेयर करता है। उसके बाद हमारे प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि क्या इस पेशेंट की ट्रीटमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। डिसाइड करने के बाद फिर हम अपना जो हमारे प्रोफेसर हैं वो पेशेंट के साथ डायरेक्ट जो है वो
कम्युनिकेट करते हैं। मज़हर बशीर साहब एक बड़ा मसला है कि जब पाकिस्तानी पेशेंट यहाँ पर आते हैं और लैंग्वेज का आपको पता कि टर्की में इंग्लिश उस तरह नहीं बोली जाती और उर्दू ज़बान भी जो है वो पाकिस्तानी मरीज़ों को यहाँ पर बोलना और टर्की समझना मुश्किल है। तो इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? अगर कोई मरीज़ आता है तो उस हवाले से कोई ट्रांसलेटर आपके पास मौजूद है? देखें, जो पाकिस्तानी पेशेंट्स जो आते हैं उनके लिए हमारा जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उसमें जो लैंग्वेज है वो उर्दू लैंग्वेज हमने डिज़ाइन की हुई है। वो जितना भी पाकिस्तानी पेशेंट्स आता है, हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं वो उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं और उसमें जो पेशेंट और डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन है वो भी हम उर्दू में वो ट्रांसलेट करते हैं। तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं पेशेंट के लिए पाकिस्तान से यहाँ ट्रीटमेंट करवाने में। आपने तफसीलन मज़हर बशीर साहब जो कि पाकिस्तान रीजन के हेड हैं उनकी बात सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर पाकिस्तानी मरीज़ पहुँच सकते हैं, अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में ऐसे मरीज़ हैं जो कि किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में उस तरह का भी इलाज मुआवजा नहीं है और ऐसे शहरी जो काबिल इस्तात हैं और वो इतनी ताकत रखते हैं, कोई पैसे देकर अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं और उनको किसी मुल्क का जो है वो मेडिकल टूरिज़म के ज़रिए जो है वीज़ा चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में तुर्की दोस्त मुल्क यहाँ पर फैसिलिटी भी है, सूरत हाल भी ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा मसला भी नहीं है और अगर लैंग्वेज की बात करें तो वो भी यहाँ पर ट्रांसलेटर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तानी मरीज़ों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वे यहाँ पर आकर जो है वो तुर्की मेमोरियल अस्पताल जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी रखता है, जिनका 90% से ज़ायद जो है वो 90% से ज़ायद जो है वो रिज़ल्ट शरह कामयाबी है, लीवर हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर आ सकते हैं। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।